Okay, now shall I pray? Shall I start? Yes, start. Shall we pray? Our most loving, gracious, living Father, we thank you for this blessed day. You have allowed us to come together again in thy presence. We are in your presence only, but as church, we unite our hearts for our prayer time with the guidance from the Word of God, the song selected for praising you, worshiping you, and our hearts tuned with the messages that are necessary for us to continue our alliance with you, nearness, and your fellowship. Your goodness and mercies may be upon us, Lord. We thank you, Father, for this privilege is not for everyone. Those who believe in you, those who follow you, those who obey you. This is our opportunity to have a blessed time of fellowship of saints together for our prayers and requests and our supplications and our adorations and our worship, mingling all this together for the glory of the Lord, for the extension of the kingdom of God, and for our blessing, that we may be a blessing to others, those who are living around us. We thank you, Father. Thank you for this time allowed for us to look to your face, that we may be enshrined, our hearts may be enlarged, our vision may be clear. We will see things that are of your value, your direction. We will see the path and walk in it, obey you 100%, dear Lord, so that our life will be a rich reward for your anticipation in our lives. When as you have always asked Israel to come back to you, return to you, call upon you, look to you. Yes, Lord, we are doing this now. Help us. Make our life worth living in this world. So far, you have been so good to us. You have answered our prayers. You have blessed our fellowship. We thank you for the growth of the fellowship members and the mercies you have given to them in all the needs that are there. Our prayers are always with faith, with our wonderful approach to the throne of grace because of the precious blood of Jesus Christ has been shed on the Calvary's cross. Through that, we are able to approach your throne of grace. You can never see us through otherwise. We are sinners, but washed and cleansed and sanctified and mortified our flesh so that we can live a life that is worthy of your calling, your making, your polishing in our lives, Lord. We thank you. We pray for our fellowship, fellow members, all the families, those who have joined. Pray that thou will be with us in all our needs, in all our walk. We may have you with us so that we will not go astray, but walk in your path of righteousness and truth, where your mercy and grace will follow us. We thank you, Father. Ask this thing in our prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 हम लोग स्तुति गाएंगे हिंदी में सॉन्ग नंबर 566 और तेलुगु में 245. हिंदी 566 and Telugu 245. जीवन अर्पण मैं करता हूँ, अमूल्य भेंट
सिर मैं झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। दुखी होकर पछताता हूँ मैं बीते दिनों के सब पापों में। दुखी होकर पछताता हूँ मैं बीते दिनों के सब पापों से। बाकी जीवन आभारी होकर अर्पण करता हूँ सेवा में मैं। बाकी जीवन आभारी होकर अर्पण करता हूँ सेवा में मैं। आभारी हूँ, सिर मैं झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। तो जरूर Gerald, Brother Gerald, हाँ, प्रेज लॉर्ड। हाँ चालू करो। आइए हम वंचित जाने से थोड़ी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं। लाभ क्वेश्चन चरण के नीचे आते हैं। अनुग्रह करना प्रभु, आपकी धीमी और सामर्थ्य वाणी सुनने के लिए सहायक आपका जीवनी शक्ति से भर दे। अपना महिमा पिता यीशु मसीह में कर लें। आपके नाम खातिर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं कि लास्ट 22 जिले को हमने सैटरडे को देखा था कि प्रार्थना का सामर्थ्य के बारे में देखा था, और अभी लगता है प्रभु की इच्छा है तो हम वो देखेंगे कि प्रभु परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। यानी आकाश और पृथ्वी बनाने वाला यानी पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को उसके कान तक पहुंचता है और वो सुन के लेता हम क्या कह रहा है और जवाब भी देता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं, केवल हम उद्धार पाए इतने नहीं है, तो जगत के सब मनुष्य जाति जो कोई आकाश पृथ्वी निर्माण करते के पास आते हैं, यानी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आके जो दुहाई प्रार्थना करते वो सुनते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और कृपा करके बदर थापा हिंदी में पढ़ना भजन संहिता 65:2। Psalms chapter 65 verse 2. Brother Thapa, 65:2। ये प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हाँ, ये प्रार्थना सुनने वाले प्रभु सब प्राणी तेरे पास आएंगे, यानी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हमारा एक ऐसा गाना भी है सियोन गीत में 403 में लिखा है, प्रार्थना सुनने वाला प्रार्थना करो तूने कहा है। ऐसा हमारे एक कोरस भी है। तो हम देखते हैं वो प्रार्थना सुनता है और हमें मौका दिया विश्वासी के लिए कि हम उसके पास जा सकते नित्य, विशेष करके उससे पुत्र कन्या। तो उसके लिए भजन करता सुधा बहुत प्रोत्साहित होके उत्साहित होके ऐसा कह रहा है कि प्रभु परमेश्वर तो प्रार्थना सुनता है, इसके लिए मैं जीवन भर जन्म भर तेरी प्रार्थना करूंगा। देखिए भजन संहिता 116 साम 116:2 साम 116 वर्स 1-2 भजन संहिता 116:1-2।
एक दो मतलब 12 ये- वचन या एक एक एंड दो? एक और दो, 1 1 2 मैं प्रेम रखता हूँ, इसीलिए यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। हाँ, तो हमको ये प्रोत्साहन मिलता है कि भजन करता बोलता मैं जीवन भर प्रार्थना करूंगा। और दूसरा हम देखते हैं कि सोलोमन ने भी यही कहा, और प्रभु ने जब सोलोमन की प्रार्थना के बाद प्रभु यहोवा ने जवाब दिया, जो हम व्यक्तिगत सामुदायिक मंदिर है, वो तो हम जानते हैं, वो एक प्रतीक था जो मंदिर बना था यरूशलेम में। अभी हम व्यक्तिगत सामुदायिक मंदिर है, तो यहोवा ने कहा कि मेरा मन और तन मन निरंतर आपके प्रार्थना विनती को ऊपर लगा रहेगा। यानी परमेश्वर पिता और परमेश्वर मसीह कान हमेशा लगे रहे, लगे रहे हैं हमारे प्रार्थना विनती के लिए। इसलिए हम रेफरेंस देखेंगे 2 इतिहास 7वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल 2 इतिहास 7 चैप्टर 14-15। आज का 2 क्रॉनिकल दूसरे इतिहास 7 14-15 आयत। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली रहेगी और मेरा कान लगा रहेगा। हाँ, तो प्रभु का आंख और कान हमेशा व्यक्तिगत सामुदायिक मंदिर में लगा रहेगा, उसने में प्रॉमिस किया। और ये सोलोमन ने भी प्रार्थना में कहा था कि हे परमेश्वर, ये होवा इज़राइल के परमेश्वर, आपकी हो रात रात दिन तेरी दृष्टि अपने दास जो प्रार्थना करेगी स्थान पे उससे लगा रखना। वो भी पढ़िए 2 इतिहास 6:20, 2 क्रॉनिकल 6:20। वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे तो उसे सुन ले। हाँ, तो सोलोमन ने कहा यहोवा को, रात दिन तेरी नजर लगी रही। और यहोवा की दृष्टि यानी पिता परमेश्वर की दृष्टि हमारी प्रार्थना विनती के ऊपर रात दिन लगी रहती है। और इतना नहीं है, पेतरस भी यही कहता है कि धर्मी के ऊपर उससे नजर होती है और उसके दुआई के लिए उसके कान नित्य लगे रहती है। 1 पेत्र 3:12, 1 पीटर 3 चैप्टर 12, 1 पेत्र 3:12 पढ़िए प्लीज। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो हम देखते हैं प्रार्थना के कान लगे रहे। प्रभु ने हमने इस वचन के द्वारा, इतना रेफरेंस के द्वारा ही सिखाई कि जो आकाश बनाने वाला सृजनहार तारनहार और अब वो हमारा पिता परमेश्वर और उसका पुत्र प्रभु मसीह महायाजक हमारे लिए हमारे प्रार्थना की ओर दृष्टि लगी रही है, कान लगी रही है। इसलिए वो अंकरेजमेंट मिला भजनकर्ता को 116 में। वो बोलता है कि मैं जन्म भर इसके लिए प्रार्थना करूंगा। और हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचना चाहिए, पहुंचती भी है। इसके लिए प्रभु हमको भी अंकरेजमेंट करते हैं कुछ रेफरेंस के द्वारा। ऐसे लेवी याजक की प्रार्थना के द्वारा हमको भी प्रभु सहायता करता है, सिखाता है कि हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच जाती है। वो भी रेफरेंस को दिखेंगे 2 इतिहास 30-27, 2 क्रॉनिकल 30 चैप्टर 27 वर्स। इसका
सेकंड क्रॉनिकल 30 चैप्टर 27 वर्स 27। अंत में लेवी याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उनके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। हाँ, तो प्रभु कान लगे हैं, सुनता है प्रार्थना, और प्रार्थना पहुंच भी गई स्वर्ग तक, यानी कार्य भी पूरा, यानी प्रभु ये वो प्रॉमिस किया, पिता परमेश्वर ने वायदा किया है, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे प्रार्थना की ओर, दुहाई की ओर मेरे कान नित्य लगे हुए हैं, और हमको प्रूफ दिया, सबूत किया, देखो ये प्रार्थना लेवी याजक की स्वर्ग तक पहुंच गई, और वो खुशी आनंद से भर गए। तो हमें प्रतिज्ञा दिया है प्रभु ने, प्रार्थना सुनने वाला ने बोला तुम प्रार्थना करो, हमारा गाना भी है 403 में, प्रार्थना सुनने वाला तूने कहा प्रार्थना करो। तो अभी प्रभु प्रार्थना सुनता है, और हमको मालूम अनुभव है, थोड़ा कुछ खाली रिमाइंड करते हैं, और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी कैसा प्रभु ने ऑन द स्पॉट प्रार्थना का सुनता है। हम देखते हैं अब्राहम का दास एलीजर जब दुल्हन के लिए ढूंढने गया इसहाक के लिए, और बॉडी के पास बावड़ी जो होती है पानी की, उसे खड़ा होकर दुआ की उसने कि अब्राहम के परमेश्वर मेरा मार्ग सफल करिए, और जो दुल्हन में चुनना चाहता हूँ इसहाक के लिए, मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दे, मैं किसको चुनना है। तो उसने ऐसा दुआ किया कि जो लड़की आएगी जिसको मैं बोलेगा पानी पिलाओ, और वो इतना ही बोलेगा मुझे पानी पिलाओ, फिर वो ऐसा बोलना चाहिए बाबा जी आप भी पानी पियो, आपको ऊंट को भी पानी पिलाता हूँ। तो ये मैं साइन मांगता हूँ, अगर ऐसा वो बोली गई तो मैं जानूंगा वही लड़की आपने इसहाक के लिए चुनी है। और तुरंत उसकी प्रार्थना अभी अब्राहम के एलीजर दास की सेवक की प्रार्थना स्वर्ग पहुंच गई, और स्वर्ग पहुंच करके पिता परमेश्वर ने पुराने नियम के अनुसार यहोवा ने अपना आत्मा उस रिबेका ऊपर उंडेल दिया, और जैसा एलीजा ने बोला मुझे पानी पिलाओ वो बोलती है आप भी पानी पियो, आपको ऊंटों को भी पानी पिलाता हूँ। तो इसने उसके सामने प्रार्थना किया, वो स्वर्ग में पहुंच गई, स्वर्ग में पवित्र आत्मा रिबेका में पहुंच गया, और रिबेका को अगुवाई और प्रेरणा दिया, तू ऐसा कर, खुशी दिया, आनंद दिया, उसको भी पिला, उसको ऊंटों को भी पिला दी, और उसने ऐसा किया। तो हम देखते हैं कैसा तुरंत इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट प्रेयर सुनी, क्योंकि वो प्रार्थना सुनने वाले। इसलिए हम वो रेफरेंस पढ़ेंगे जेनेसिस 24, उत्पत्ति 24, जेनेसिस 24 वर्स 42 to 44। इसीलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे कि पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी, वह वही स्त्री हो जिसकी तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। और 45-46 वही चैप्टर। मैं मन ही मन यह कह रहा था, देखो रिबिका कंधे पर घड़ा लिए हुए आई, और वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा मुझे पिला दे, और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार कर कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने पी लिया, और उसने ऊँटों को भी पानी पिला दिया। तो हमको प्रभु ने अनुभव दिया कि कैसा प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया, मतलब प्रार्थना सुनने वाला। और हमने 2 इतिहास 3:27 में भी देखा कि लेवी याजक ने प्रार्थना किया, इस्राएल को आशीष दिया, उनकी प्रार्थना स्वर्ग धाम तक पहुंच गई, और प्रभु ने काम कंप्लीट किया। ऐसा एक भी उदाहरण हम देखते हैं, जब पौल प्रभु का यीशु मसीह का दर्शन होने के बाद वो अंधा था, 3 दिन खाया पिया नहीं था, जो तास्कर शॉल बोलते हैं,
यहूदी घराने में बैठा हुआ 3 दिन, और उसके बारे में प्रभु ने गवाही दी कि वो देखो प्रार्थना कर रहा है। तो पौलुस उस अंधेपन में ऐसे ही यहूदी के घराने में बैठ करके दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि मेरे दृष्टि आ जाए, और ये दुआ कर रहा था। और आगे क्या है, बस वो प्रार्थना पिता के पास पहुंच गई, यीशु मसीह ने बिछवाई की, और उसके प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा को पहले भेज दिया हन्ना के हृदय में, आत्मा में। हन्ना को बोल दिया जाओ, ऐसे से सीधा मार्ग है, तास्कर यहूदी को खोज ले, यहूदी घर में, तास्कर शौल के यहूदी घर में है, वो उसको खोजो और जा करके हाथ रख के प्रार्थना करो। तो पौलुस ने सिर्फ प्रार्थना किया था, बस आगे का कार्य हम देखते हैं पिता पुत्र आत्मा ने कैसा किया। और वो आकर के शौल को बोला, जिस प्रभु ने तुझे दर्शन दे उसने मुझे भेजा है। इसका मतलब क्या, तूने प्रार्थना किया था क्या यीशु के पास जिसने दर्शन दिया कि तेरी आँख खोलने के लिए? मुझे तो कैसा मालूम हो गया, तूने प्रार्थना किया था, पिता परमेश्वर मुझे बोल दिया। तो हम देखते हैं कंप्लीट कार्य होता है, प्रार्थना स्वर्ग पहुंच गई, पिता पुत्र ने आत्मा ने काम किया। हन्ना और इसका शौल का कोई संबंध रिश्ता नहीं है, कोई जानता नहीं है। उसका पिता ने उसको प्रार्थना का करना किया। तो उसके बारे में हम देखते हैं तेरी तो काम देखिए 9:11 होगा। बुक ऑफ एक्ट 9:11 और तब 17 प्रभु पढ़िए ने प्लीज। प्रभु ने 9:11 उससे बुक ऑफ कहा, एक्ट पेरितो काम 9 अध्याय 11 और 17 वचन। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तो पौल ने प्रार्थना किया और यीशु मसीह ने गवाही दी, देखो प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा था पिता परमेश्वर के पास उसे आँख खोलने के लिए, और कुछ भी हो सकता है, मगर इसका और हम देखते हैं हन्ना का कोई कनेक्शन नहीं, दोनों जीवन भर नहीं जानते एक दूसरे के लिए। मगर प्रार्थना को प्रभु ने सुना, हन्ना को भेजा, और प्रभु का आश्चर्य क्रम देखते हैं, यानी वो प्रार्थना सुनता है। वैसा हम परिचित है कि कर्नल भी ऐसा रात दिन प्रार्थना, दान धर्म, परमेश्वर के परिवार के साथ भय, डर, दुआ, प्रार्थना, विनती करता था। और दूत आके बोला तुम्हारे प्रार्थना को सुन लिया, यानी प्रभु प्रार्थना सुनता है। हम देखते हैं पहले तो काम 10 और सेकंड 4 पढ़ेगा वर्ष। पहले तो काम 10 चैप्टर 2 और 4 वर्ष। पहले तो काम 10वां अध्याय 2-4। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। तो हमने देखा प्रभु ने प्रार्थना सुनी, इसके लिए भजन करता हम देखते हैं 65:2 में, हे परमेश्वर यानी आकाश पृथ्वी बनाने वाला, पूरा नेम यहोवा, जो तू दुहाई प्रार्थना सुनता है, तेरे पास सब मनुष्य जाति आती है। ये तो पराष्ट्रीय है। और एलिजर तो सेवक है, वो नहीं बोलता कि मेरे परमेश्वर खुदा अब्राहम या परमेश्वर, ऐसा बोलते मेरे दास अब्राहम के परमेश्वर। तो सब पराष्ट्रीय के लिए, सब संसार की प्रार्थना सुनने वाला है, और विश्वासी के लिए विशेष करके 1 पेत्र 3:11 कान मन लगा रहा है। तो हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। अब हम एक आखिर का उदाहरण देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि हे परमेश्वर, हे पिता, मेरी तो प्रार्थना सुन ली, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और तू मेरे सदा प्रार्थना सुनता हूँ, मैं जानता हूँ। और मैं इसलिए दुआ कर रहा है कि सब जो लोग इकट्ठे हो जाने की तूने मुझे भेजा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी शुरुआत किया, हे पिता परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना हमेशा सुनता है। और पहला बोला, मैं परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना सुनिए,
और तू मेरी हमेशा प्रार्थना सुनता है। यानी प्रभु यीशु मसीह जीवन के दौरान हम भी देखते हैं और प्रार्थना कैसे सुनी और लाजर को यीशु मसीह की शक्ति और बोलने के द्वारा जीवित किया, उसके एक आखिर का वचन देखते हैं। जॉन गॉस्पेल 11 चैप्टर 41-42, योहान शुभ वर्तमान 11 अध्याय 41 और 42। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास यहाँ खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तो हम देखते हैं बहन स्मिथ बोला है, उस अंदर वचन दे दो। तो हमारे यही एक विषय है, प्रेरणा अगुवाई मेरे ख्याल से पवित्र आत्मा देता है। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। तो क्यों नहीं पौलुस भी एक थेस्सलुनीके बोलते, इसलिए मैं रात दिन बहुत प्रार्थना करता हूँ। बहुत कुछ उसके रेफरेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है हमको विश्वासी के लिए एक प्रिविलेज, एक अधिकार, एक मौका दिया है। क्यों न उसका फायदा उठाए। हमको रस किया, अर्ज किया, और पौलुस ने बोला, यीशु मसीह लूका 18 बोला, रात दिन चुने प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना करके हमें ये प्रतिफल मिलेगा, हमें स्वर्ग में असीम धन मिलेगा, युग युग रहने वाला, कभी नाश न होने वाला प्रतिफल मिलेगा। जो संडे को बोला ब्रदर राजेश ने, जो सनातन है, सनातन आशीष के ऊपर आशीष, हमेशा युगान आशीष है, जिसके लिए हमको बुलाहट है, हमको ऐसा मौका दिया और उसने पिता परमेश्वर प्रोविजन किया। वो खुद बोलते इंटरेस्टिंग है कि मैं प्रार्थना सुनने वाला, तुम प्रार्थना करो रहा हूँ। हमने देखा प्रार्थना का जवाब भी दिया है और इन्विटेशन भी दिया है, हमको आमंत्रण दे कि करो प्रार्थना ऐसा। तो प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करे। आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना शुरू करेंगे।